ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں باغوں کا شہر پھر فضائی آلودگی میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 425 تک جا پہنچا۔ عام افراد کے ساتھ اسکول کے بچے بھی بیمار پڑنے لگے۔ آنکھوں میں جلن، گلے میں خراش، سانس لینے میں مشکل کی شکایات۔ اساتذہ کا اسکولوں کے اوقات کار تبدیل کرنے، ہفتے میں 2 چھٹیاں دینے کا مطالبہ۔ شہر میں گرد کے سائے برقرار ہیں۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے فضا آلودگی سے بھر گئی ہے۔ گاڑیوں اور فیکٹریوں کے دھوئیں نے فضا میں سلفر، نائٹروجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار بڑھا دی ہے، جس سے کھلی فضا میں سانس لینا بھی دشوار ہو گیا ہے۔ اسکول جانے والے بچوں کو بھی اسموگ کے چیلنج کا سامنا ہے۔ سانس، گلے کے امراض کے ساتھ اشوب چشم کی شکایات بڑھ رہی ہیں۔ طلبہ اور اساتذہ نے اسکولوں کے اوقات کار میں تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے۔ آنکھوں میں خارش ہوتی ہے، جب ادھر بھی ہوتی ہے، الرجی ہو جاتی ہے، کبھی پاؤں پر بھی ہوتی ہے، کبھی سر پر بھی ہوتی ہے، ساری جگہ ہوتی ہے الرجی۔ جلن ہوتی ہے آنکھوں میں، سانس کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ طبی ماہرین نے بھی واضح کیا ہے کہ اسموگ کی صورتحال میں بہتری تک شہری احتیاطی تدابیر اپنائیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ پہلا کام اپنے ہاتھوں کو، ناک کو، گلے کو، آنکھوں کو اچھے طریقے سے واش کر لیں، فلش کر لیں صاف پانی سے، اور اس سے بھی بہترین طریقہ یہ ہے کہ اچھے طریقے سے باتھ لے لیں، اور جب آپ باتھ لیتے ہیں، نہاتے ہیں تو وضو ہی کرتے رہتے ہیں، ناک میں پانی، گلے میں پانی، یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ آلودہ فضا نے لاہوریوں کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ صورتحال سے نپٹنے کے لیے انتظامیہ کو ہنگامی اقدامات اور شہریوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسموگ اور فضائی آلودگی کا باعث بننے والی گاڑیوں اور صنعتی یونٹس کے خلاف مؤثر کارروائی کر کے شہریوں کو گلے سمیت دیگر بیماریوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ کیمرامین شاہد محمود کے ساتھ فریحہ بطول، سٹی 42۔ شہر میں اسموگ کی بڑھتی شرح کے باعث بجلی کے بریک ڈاؤن کے خدشات۔ لیسکو کی جانب سے 132 kV کی ٹرانسمیشن لائنز کے ڈسک انسولیٹر پر جمع ہونے والی آلودگی کی صفائی کے لیے اقدامات نہیں کیے جا سکے۔ کمپنی کے ہائی ٹرانسمیشن سسٹم میں نصب ڈسک انسولیٹر پر جمنے والی اسموگ ٹرپنگ بریک ڈاؤن کا باعث بن سکتی ہے۔ ماضی میں اسموگ کی وجہ سے ٹرانسمیشن لائنز کی ٹرپنگ کے واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ کمپنی نے چند سال قبل کروڑوں روپے کی لاگت سے ڈسک واشنگ مشین درآمد کی تھی تاکہ اسموگ کے سیزن میں ٹرانسمیشن لائن کی صفائی کی جا سکے۔ تاہم کروڑوں روپے کی ڈسک واشنگ مشین کو ڈسک انسولیٹر کی صفائی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکا۔ ڈسک واشنگ مشین کی مدد سے 132 kV کی ٹرانسمیشن لائن کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ حکومت کی جانب سے ڈینگی کے حقیقی اعداد و شمار چھپائے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ 24 گھنٹوں میں ڈینگی کے صرف 77 مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ حکومت کی جانب سے جاری ڈینگی کے اعداد و شمار میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں 77 مریض رپورٹ ہوئے اور کوئی ہلاکت نہیں ہوئی، جبکہ زمینی حقائق کا جائزہ لیا جائے تو حکومتی اعداد و شمار میں تضادات سامنے آتے ہیں۔ اتوار کو جناح اسپتال میں لیڈی ڈاکٹر سعدیہ نجیب کا انتقال ہوا۔ وہ ڈینگی میں مبتلا ہونے کے باعث وینٹیلیٹر پر تھیں۔ دوسری جانب ہسپتالوں میں مریضوں کے رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود حکومت بضد ہے کہ ڈینگی کے پھیلاؤ میں کمی آ رہی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق رواں برس مرض سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 15,732 ہے۔ اس وقت ہسپتالوں میں 1,222 مریض زیر علاج ہیں۔ ادھر سرکاری ہسپتالوں میں آپریشن سے قبل پرائیویٹ لیبارٹری سے کورونا ٹیسٹ کی شرط ختم کر دی گئی۔ مریضوں کا ٹیسٹ اب سرکاری ہسپتال سے ہوگا۔ محکمہ صحت گھر گھر کورونا ویکسینیشن کا ہدف حاصل نہ کر سکا۔ سرکاری ہسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کو بڑا ریلیف مل گیا۔ پنجاب حکومت نے مریض کے آپریشن سے پہلے پرائیویٹ لیبارٹری سے کورونا ٹیسٹ کرانے کی شرط ختم کر دی ہے۔ کابینہ قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مریض کا کورونا ٹیسٹ اب سرکاری ہسپتال سے ہی کرایا جائے گا۔ اس سے پہلے شہری پرائیویٹ لیبارٹری سے مہنگے داموں کورونا ٹیسٹ کرانے پر مجبور تھے۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ گھر گھر کورونا ویکسینیشن مہم کا ہدف حاصل نہ کر سکا۔ مہم کے تحت 12.5 لاکھ لاہوریوں کی ویکسینیشن ہونا تھی۔ حکام 69% ہدف حاصل کر سکے۔ 4.25 لاکھ شہریوں کو ویکسین ہی نہ لگ سکی۔ دوسری جانب شہر میں کورونا کی چوتھی وبا دم توڑ چکی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 56 نئے مریض سامنے آئے۔ شہر میں مثبت کیسز کی شرح 1.3% ریکارڈ کی گئی۔ طبی ماہرین کے مطابق مرض کی شرح میں کمی کے باوجود شہری ماسک کا استعمال لازمی کریں۔ شہر میں ٹماٹروں کی قلت۔ سبزی منڈی میں ٹماٹر 1,100 روپے دھڑی تک جا پہنچا۔ دکانوں پر ٹماٹر 220 سے 240 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا۔ شہر میں ٹماٹروں کی قلت پیدا ہوگی۔ ٹماٹر کا ریٹ سبزی منڈی میں 1100 روپے دھڑی تک پہنچ گیا۔ دکانوں پر ٹماٹر 220 سے 240 روپے کلو فروخت ہونے لگا۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ لوکل فصل دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے ٹماٹر مہنگا ہوا۔ ٹماٹروں کی فصل جو اس وقت یعنی کہ ساری خراب ہو چکی ہے۔ یہ ٹماٹر باہر سے سارے آ رہے ہیں، اس لیے مارکیٹ میں کم ہے، اس لیے یہ مہنگا ہو رہا ہے۔ اگر پاکستان کی فصل چلے گی تو یہ تقریباً
फिर वही पुराने रेट पर आ जाएगा 60-70 रुपए किलो। मार्केट में दीगर सब्जियों में मटर 250 रुपए और शिमला मिर्च 300 रुपए, सब्ज मिर्च 120 रुपए, लीमू 80 रुपए, नया आलू 90 रुपए, गाजर चाइना 170 रुपए, प्याज 50 रुपए किलो, लहसुन 300 रुपए, अदरक 350 रुपए, बैंगन सरकारी कीमत 37 रुपए, फरोख्त 50 रुपए फी किलो किया जा रहा है। सारिफीन का कहना है कि अब कुछ भी सस्ता नहीं रहा, महंगाई ने हर चीज पहुँच से दूर कर दी है। 240 रुपए किलो है, गरीब बंदा क्या करे जो 600-700 रुपए कमाता है, कहाँ से खाए? 400 से ऊपर घी हो गया, क्या करे? इस हुकूमत का अल्लाह ही हाफिज है। टमाटर 240 रुपए मंडी में है, चलो उन्हें समझाओ कोई इमरान खान क्योंकि कर रहा है, महंगाई कर रहा है इतनी। अभी टमाटर मंडी में और रेट है, यहाँ पे और रेट है। मंडी में कम है, यहाँ पे 20 ज़्यादा 30 ज़्यादा होते हैं। ये इन लोगों का जो ना अपना ही रेट है, मंडी का रेट नहीं होता। महंगाई ने जहां आम आदमी की कुव्वत खरीद कम कर दी, वहीं इनके लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना भी मुश्किल हो गया। कैमरामैन सज्जाद अहमद के हमरा जुनैद रियाज, सिटी 42। बात करेंगे पंजाब में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स को कानूनी दायरा कार में लाने के मामले पर। कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख की तनख्वाह 12 लाख रुपए मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई। महकमा बल्दियात ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों को कानूनी दायरा कार में लाने के लिए कमीशन बनाया था, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अजमत सईद शेख को चेयरमैन मुकर्रर किया गया। पंजाब हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख को चेयरमैन लगाने की बाकायदा मंजूरी अगस्त में होने वाले काबीना के इजलास में दी थी, जिसके बाद उनकी तनख्वाह और मुराद के लिए अलग समरी भिजवाई गई। जराये के मुताबिक इजलास के दौरान एतराजात के बावजूद जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख की तनख्वाह 12 लाख रुपए मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई है। काबीना कायमा कमेटी ने इस फैसले की बाकायदा तौसीक कर दी है। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा केस सुनने वाले बेंच के रुकन थे। CEO लेक सिटी गौहर एजाज आला तालीम के फ़रोग़ के लिए कोशां हैं। लम्स में 4 साला डिग्री प्रोग्राम के लिए 26 ज़हीन तलबा के लिए तालीमी वज़ाइफ स्कॉलरशिप्स लम्स नेशनल आउटरीच प्रोग्राम के तहत फराहम की गईं। स्कॉलरशिप्स की फराहमी के लिए लम्स में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें CEO लेक सिटी और ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज, सुल्तान गौहर, रेक्टर लम्स शाहिद हुसैन, वाइस चांसलर लम्स डॉक्टर अरशद अहमद, डायरेक्टर एडवांसमेंट नुज़हत कामरान, डीन्स और तलबा ने शिरकत की। लेक सिटी की जानिब से 26 तलबा को 4 साल के लिए तालीमी वज़ाइफ दिए गए। CEO लेक सिटी गौहर एजाज ने कहा कि वो स्कॉलरशिप्स का दायरा मजीद बढ़ाएंगे। I wish you all the best and I just want to share that each and every penny which has been spent on you is tax paid, zakat paid, very hard earned, and even saved with one meal from generations. स्कॉलरशिप्स हासिल करने वाले तलबा ने गौहर एजाज का शुक्रिया अदा किया और प्राइवेट सेक्टर के लिए काबिले तकलीद मिसाल करार दिया। ये स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है, आई थिंक इट्स रियली गुड। जो लोग एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, इस स्कॉलरशिप के थ्रू दे कैन अफोर्ड एजुकेशन और वहाँ पढ़ सकते हैं विदाउट बीइंग अ प्रेशर ऑन देयर पेरेंट्स। लम्स चूँकि बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, मैं इसकी फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकती, तो मिस्टर गौहर एजाज ने स्पॉन्सर किया है मुझे और मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऑनेस्टली मैं एजुकेशन इस तरह से इतनी क्वालिटी एजुकेशन परस्यू नहीं कर पाता अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती। रेक्टर लम्स शाहिद हुसैन ने बताया कि नेशनल आउटरीच प्रोग्राम के तहत पसमानदा इलाकों से ज़हीन तलबा का चुनाव किया जाता है। गौहर एजाज 2017 से नेशनल आउटरीच प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक ज़हीन तलबा को तालीमी वज़ाइफ फराहम कर रहे हैं। लम्स नेशनल आउटरीच प्रोग्राम ने रवां साल ग्लोबल केस प्लैटिनम अवार्ड भी जीता है। कैमरामैन फरहान अंसारी के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। पंजाब हुकूमत के नए बल्दियाती एक्ट 2021 के तहत मेयर लाहौर का इंतखाब बराह रास्त और जमाती बुनियादों पर होगा। मेयर लाहौर LDA, वासा, टीपा, PHA और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का सरबराह होगा। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के हाउस के अराकीन की तादाद 70 तक रखी गई है। पहली मरतबा सीनियर सिटीजन की 4 नशिस्तें भी रखी गई हैं। सिटी 42 को मौसूल होने वाले नए मुसव्वदे की प्रेजेंटेशन के मुताबिक मेयर लाहौर LDA, वासा, टीपा, PHA और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का सरबराह होगा। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एजुकेशन सोशल वेलफेयर अथॉरिटीज, डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन कंट्रोल और स्पोर्ट्स अथॉरिटी भी मेयर के पास होंगी। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर का हाउस 70 मेंबर्स पर मुश्तमिल होगा। 45 जनरल काउंसलर्स और 25 मखसूस नशिस्तों की नुमाइंदगी रखी गई। 2 ट्रेडर्स काउंसलर, 1 सीनियर सिटीजन हाउस का मेंबर होगा। 4 यूथ काउंसलर, 6 किसान काउंसलर, 10 खवातीन भी काउंसलर हाउस और 2 अक़लियती काउंसलर्स हाउस मेंबर बनेंगे। अभी आपको बताएं, पंजाब हुकूमत लाहौर पर मेहरबान। तारीख में पहली बार लाहौर को 50% तक का तरक्याती बजट जारी कर दिया गया। शहर को दूसरे क्वार्टर के दौरान ही 25 अरब रुपए तक का बजट मिल गया।
पंजाब हुकूमत ने रवां माली साल के बजट में लाहौर के लिए 51 अरब रुपए का पैकेज मुख्तस किया है, जिससे न सिर्फ अवामी बल्कि 700 से जायद महकमाना मंसूबों को मुकम्मल किया जाएगा। ज़राए महकमा खजाना के मुताबिक पहले क्वार्टर में लाहौर को 15 अरब रुपए का बजट दिया गया था। दूसरे क्वार्टर का आगाज होते ही मजीद बजट जारी कर दिया गया है। जारी तरक्याती मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए फंड का इजरा किया गया है। बजट दस्तावेजात के मुताबिक लाहौर में 700 से जायद अवामी फलाह और दीगर महकमाना मंसूबों को शामिल किया गया है, जिसमें साफ पानी की फराहमी, रोड सेक्टर और सीवरेज के नकासी आब के मंसूबों की तादाद सबसे ज्यादा है, जबकि दूसरी जानिब बजट के इस्तेमाल की शरह इस वक्त 15% से जायद है, जो जारी शुदा बजट की निस्बत इंतहाई कम है। पंजाब भर के असातिज़ा बेनेवलेंट फंड के हुसूल के लिए ख्वार। महकमा खजाना ने हजारों असातिज़ा को बेनेवलेंट फंड्स की अदायगियाँ रोक दी हैं। पंजाब भर के सैकड़ों असातिज़ा की जानिब से एतराज के बाद बेनेवलेंट फंड की अदायगी रोकी गई है। बेनेवलेंट फंड की अदायगी पर एतराज ग्रेड 16 के असातिज़ा की जानिब से सामने आया। असातिज़ा का कहना है कि उनकी तनख्वाह से कटौती ग्रेड 16 के हिसाब से की गई, जबकि अदायगी ग्रेड 15 के हिसाब से की जा रही है। पंजाब टीचर्स यूनियन के मुताबिक बेनेवलेंट फंड असातिज़ा का हक है। महकमा खजाना ने जिस तनासुब से कटौती की उसी तनासुब से अदायगी करे। गुलाब देवी अंडरपास की फाइलों में बड़ा नुक्स सामने आ गया। अंडरपास की दीवारों के लिए की जाने वाली फाइलें डी शेप हो गईं। एलडीए ने पर्दा डालने के लिए फाइलें तोड़कर कंक्रीट वॉल करना शुरू कर दी। गुलाब देवी अंडरपास के लिए की गई सैकड़ों पाइलों की असल सूरत में न होने से अब पाइलों को तोड़ा जा रहा है। मंसूबे के कॉन्ट्रैक्टर ने पाइलों को तोड़कर हमवार करना शुरू कर दिया है। पाइलों को तोड़ने के दौरान कॉन्ट्रैक्ट खराब और स्टील स्ट्रक्चर वाज़ेह होना शुरू हो गया है। पाइलों को हमवार और बदनुमा लगने से बचाने और पर्दा डालने के लिए इजाफी कॉन्ट्रैक्ट से वाल बनाई जा रही है। इससे कबल लाल शहबाज कलंदर अंडरपास की पाइलें भी डी शेप हो गई थीं। पाइलों को तोड़ने से मजबूती पर असर पड़ सकता है। चीफ इंजीनियर 2 मजहर हुसैन का कहना है कि पाइलों को असल तरतीब में लाकर दीवार हमवार की जा रही है, जबकि स्ट्रक्चर मुतासिर होने से बचाया जाएगा। शहर के 18 थानों में एसएचओज की तैनाती नहीं हो सकी। लाहौर पुलिस का एसएचओज की तैनाती के लिए इलेक्शन कमीशन से इजाज़त लेने का फैसला। इजाज़त मिलने तक थानों में एक्टिंग चार्ज दे दिए गए हैं। शहर के 18 पुलिस स्टेशंस पर एसएचओज की तैनाती न हो सकी। डीआईजी ऑपरेशंस एहसन यूनुस ने नाकिस कारकर्दगी और जुराइम के मुकदमात दर्ज न करने पर 17 एसएचओज को मुअत्तल किया था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तबादलों पर पाबंदी आयद की गई थी। ताहम अब एसएचओज की तैनाती के लिए लाहौर पुलिस ने इलेक्शन कमीशन से इजाजत लेने का फैसला किया है। पुलिस हुकाम का कहना था कि इलेक्शन कमीशन से इजाजत से पहले खाली थानों में एक्टिंग चार्ज दे दिया गया है। कस्टम्स और इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में खुद एहतसाबी का निज़ाम तैयार। 100 दिनों में महकमाना इंक्वायरी मुकम्मल न करने वाले अफसरान से जवाब तलबी होगी। बरवक्त इंक्वायरी की तकमील पर अफसरान निस्फ बुनियादी तनख्वाह से 2 इजाफी बुनियादी तनख्वाहों के हकदार करार पाएंगे। कस्टम्स एंड लैंड रेवेन्यू सर्विस के महकमाना इंक्वायरियों में पेटी भाइयों पर हाथ हौला रखने वाले इंक्वायरी अफसर रडार पर आ गए। चेयरमैन एफबीआर डॉक्टर इशफाक ने इंक्वायरियों को गैर मामूली इल्तवा में डालने का नोटिस ले लिया। चेयरमैन एफबीआर ने 100 दिन में इंक्वायरी मुकम्मल न करने वाले अफसर का स्पेशल अलाउंस मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी है। ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन की इंक्वायरी को 40 दिन में मुकम्मल न कर पाने वाले इंक्वायरी अफसरों का भी अलाउंस बंद कर दिया जाएगा। एफबीआर ने बर वक्त इंक्वायरियां मुकम्मल करने वाले अफसरान को खुशखबरी सुना दी है। 60 रोज में इंक्वायरी मुकम्मल करने वाले अफसरों को 2 बुनियादी तनख्वाहें बतौर मुराद दी जाएंगी। 75 दिन में इंक्वायरी निपटाने वाले अफसरान को 1 इजाफी बुनियादी तनख्वाह और 90 रोज में इंक्वायरी मुकम्मल करने पर निस्फ बुनियादी तनख्वाह दी जाएगी। एफबीआर की लाहौर में टैक्स डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। शादीपुरा बंद रोड पर वाक़े मलिक स्टील सेंटर को 3 करोड़ रुपए की अदम अदायगी पर ताले लगा दिए गए। मालिक की DHA फेज 8 में वाक़े रिहाइशगाह और फैक्ट्री को कुर्क करके नीलाम करवाने का अमल भी शुरू कर दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ पर 80 लाख पाउंड जुर्माने का मामला। हुकूमत नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी फरोख्त करने के लिए मुतहर्रिक हो चुकी है। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नवाज शरीफ की जाती उम्रा रिहाइशगाह पर नोटिस आवेजा कर दिए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर 80 लाख पाउंड जुर्माना आयद किए जाने के बाद हुकूमत उनकी जायदाद फरोख्त करने के लिए मुतहर्रिक हो गई है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नवाज शरीफ की जाती उम्रा रिहाइशगाह के बाहर नोटिस इस्मा कर दिए हैं। नोटिस के मुताबिक मियां नवाज शरीफ के नाम ज़रई अराजी को 19 नवंबर बरोज जुमा नीलाम किया जाएगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नैब लाहौर और नैब रावलपिंडी के अफसरान को नीलामी में शामिल होने की दरख्वास्त कर दी है। मियां नवाज शरीफ की जायदाद फरोख्त करने के हवाले से मुस्लिम लीग नून ने इसे एक और सियासी इंतकामी कार्रवाई करार दिया है। रहनुमाओं का कहना है कि 3.25 साल से ज़ायद अरसे में हुक्मरान एक घैले की करप्शन साबित नहीं कर सके। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ उमर असलम, सिटी 42।
हुकूमत का बिजली सार्फिन के लिए रियायती टैरिफ खटाई में पड़ने का खदशा है। लेस्को के मीटर रीडर्स ने नए सॉफ्टवेयर पर रीडिंग से हाथ उठा लिए। जनरल हस्पताल में नर्सेज और पैरामेडिक्स का MTI एक्ट के खिलाफ एहतजाज। जमात इस्लामी ने बादामी बाग में महंगाई के खिलाफ मुजाहिरा किया। हुकूमत ने सर्दियों में बिजली का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए रियायती टैरिफ का ऐलान किया। ताहम लेस्को के मीटर रीडर्स ने नए सॉफ्टवेयर पर तहफुजात का इजहार करते हुए हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मीटर रीडर्स का कहना था कि वो एक आम एंड्रॉयड फोन से रीडिंग नोट करते हैं। नया सॉफ्टवेयर मोबाइल फोन पर नहीं चलता। इंतजामिया बाद में किसी भी नाकामी का मलबा उन पर गिरा देगी। जनरल हस्पताल में नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ ने मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट एक्ट के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने MTI एक्ट को फौरी खत्म करने का मुतालबा किया। नौशरमान खान बरकी जो के प्राइवेटाइजेशन का ठेका लेके लाहौर जनरल अस्पताल लाहौर और इसके साथ पंजाब की तकरीबन 8 लाहौर की हॉस्पिटल को जो ठेका ले रहे हैं उसको हम ना मंजूर करते। हम MTI एक्ट को मानते ही नहीं है। ये हमने काला कलम तस्लीम इसको कर दिया है और हम किसी सूरत में भी हम इस कानून को जनरल हॉस्पिटल के बल्कि पूरे पंजाब में जो हो नाफिज नहीं होने देंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन ने 25% डिस्पैरिटी अलाउंस और 44% हाउस अलाउंस के लिए VC ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। अगर अज इन्होंने सानू 25% ना दिता और असी 7 क्लब इंशाअल्लाह ताला लोग ने डबल असी इंशाअल्लाह 7 क्लब जाके एहतजाज करांदे। हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुआहदे का मामला जेलों में बंद से नहीं हो सकी। पंजाब पुलिस का कहना है कि उन्हें मुकदमात के खात्मे के लिए कोई अहकामात मौसूल नहीं हुए। हुकूमत के साथ तहरीक लबैक के मुआहदे के बाद उम्मीद की जा रही थी कि जेलों में बंद सैकड़ों कारकुन रिहा हो जाएंगे। ताहम पुलिस हुकाम का कहना है कि मुकदमात खत्म करने के हवाले से उन्हें कोई अहकामात मौसूल नहीं हुए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक TLP के साथ हालिया तसादुम के दौरान 44 मुकदमात लाहौर में दर्ज किए गए। शेखुपुरा में 37 और गुजरांवाला में 8 मुकदमात का इंदराज हुआ। इन मुकदमात में 455 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें TLP के रहनुमा भी शामिल हैं। पुलिस अफसरान के मुताबिक दर्ज मुकदमात पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है और उन्हें हुकूमत की जानिब से कोई हिदायत मौसूल नहीं हुई। N133 से हुकूमती उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद होने का मामला। जमशेद इकबाल चीमा और उनकी अहलिया की अपील पर हाई कोर्ट का तीसरा बड़ा बेंच तश्कील। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच मंगल को समाअत करेगा। 133 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा की दरखास्त पर बिलाखिर हाई कोर्ट का बेंच तश्कील पा गया। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच मंगल को जमशेद इकबाल चीमा और उनकी अहलिया मुस्तरद जमशेद की दरखास्तों पर समाअत करेगा। हुकूमती उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर रखा है। जमशेद इकबाल और उनकी अहलिया मुस्तरद जमशेद के कागजात रिटर्निंग अफसर ने मुस्तरद किए। फैसले में कहा गया कि दोनों उम्मीदवार के तजवीज कुनिंदगान का ताल्लुक हल्के से नहीं है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने भी रिटर्निंग अफसर के फैसले को बरकरार रखा। जमशेद इकबाल चीमा और उनकी अहलिया ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच तश्कील दिया गया। फाजिल बेंच ने केस की समाअत से माजरत की और फाइल दूसरे बेंच को भिजवा दी, जिसके बाद जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस फैसल जमान खान पर मुश्तमिल दूसरा बेंच तश्कील दिया गया। लेकिन बेंच में शामिल जस्टिस शुजात अली खान के इनकार पर यह बेंच भी तहलील हो गया। अब तीसरा बेंच अपीलों पर समाअत करेगा। और अब शहर के अदालतों में अहम केसेस की समाअत का हवाल इस रिपोर्ट में। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ सामने आई है। एहतसाब अदालत ने केस में नामजद शहबाज शरीफ फैमिली की कंपनियों के CFO मोहम्मद उस्मान की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली और 1 करोड़ के 2 जमानती मुचल्लकों पर रिहाई का हुक्म दे दिया। जस्टिस आशा मलिक की अदालत में 56 कंपनियों की कानूनी हैसियत से मुतल्लक केस की समाअत हुई। फाजिल अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब को हिदायत की कि आइंदा समाअत पर बताया जाए कंपनीज कौन से अख्तियारात इस्तेमाल कर रही हैं जो पंजाब हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट के पास नहीं हैं। दरखास्त गुजार ने हाई कोर्ट में 56 कंपनियों की कानूनी हैसियत को चैलेंज कर रखा है। एहतसाब अदालत ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बरजीज ताहड़ की अबूरी जमानत में 2 दिसंबर तक तोसी कर दी। नैब ने बरजीज ताहड़ के खिलाफ आमदन से जायद असासों का केस बना रखा है। बरजीज ताहड़ ने नैब केस को अपने खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करार दिया है। बादामी बाग में मदरसा कारी के मुबैना तशद्दुद से 14 साल हमजा की हिलाकत। मुलजिम कारी अमजद के खिलाफ कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। CCPO ने लवाहकीन को इंसाफ की यकीन दहानी करवाई है। सारिफ अदालत में सबसे ज्यादा शिकायत इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स के मालिकान के खिलाफ मसूल हुई। दूसरे नंबर पर मोबाइल फोन, तीसरे नंबर पर फर्नीचर शॉप और चौथे नंबर पर कंस्ट्रक्शन सेक्टर के खिलाफ दावे दायर हुए। अदालत ने अक्टूबर में 87 केस के फैसले सुनाए।